Yes, good morning. This is Imran ul Haq with a new reading video. You can see this one is book 19, academic reading, and you can see test 1, reading passage 3, and the topic is the era of artificial speech translation upon us. So, this is a bit technical topic and we are going through it inshallah handsomely and conveniently. I'll keep you everything in an explained way so that you may not face any difficulty. So let's start. Okay, so first of all, this is a paragraph passage and we are going to find out the uh, questions. What kind of questions? First of all, we are going to do multiples. Okay, read out the instructions. Choose the correct letter A, B, C, D. No, you can see there are A, B, C, D. And let's see the statement, question statement. What does the reader learn about the conversation in the first paragraph? Okay. What does the reader learn in the first paragraph from the conversation of two speakers? Okay, let's see what does the learner learns. Okay, so this is the first paragraph. You can see noise. Alex Webel tells about the noise is one of the major challenges. Noise is a major challenges that artificial speech translation has to meet. जो आर्टिफिशियल स्पीच ट्रांसलेशन जिसका सामना कर रही है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो नॉइस है. अ डिवाइस में बी एबल टू रिकॉग्नाइज स्पीच इन अ लेबोरेटरी. अ डिवाइस may be able, any device may be able to recognize speech in laboratory. किसी भी लेबोरेटरी में स्पीच को रिकॉग्नाइज कर सकती है एक डिवाइस और मीटिंग रूम या मीटिंग रूम में, बट विल स्ट्रगल टू कोप विद द काइंड ऑफ बैकग्राउंड नॉइस एंड डेफिनेटली ही विल इट विल फेस सम चैलेंजेस फॉर द बैकग्राउंड नॉइस. ओके, बैकग्राउंड नॉइस से वो कुछ उससे उसको निपटना पड़ेगा. आई कैन हेयर इन माई ऑफिस सराउंडिंग प्रोफेसर वेबल एज द स्पीक्स टू मी. मैं सुन सकता हूँ अपने ऑफिस की सराउंडिंग में प्रोफेसर वेबल जब वो बोलता है मेरे साथ. कहाँ से? क्योटा स्टेशन इन जापान. वो क्योटा स्टेशन जापान से मेरे साथ बात करता है, तो मैं ये सुन सकता हूँ अपने सराउंडिंग में नॉइज़ को. आई एम स्ट्रगलिंग टू फॉलो हिम इन इंग्लिश. जब वो इंग्लिश में बात करता है तो मुझे समझने में मुश्किल पेश आती है. On a scratchy line, that was a scratchy line which shrieks or gives some sounds, line that reminds me we are nearly 1000 kilometers. Because the noise is scratchy, that's why I think we are sitting almost 1000 kilometer away, apart away, and that distance is still an obstacle to communication even. So this distance 1000 kilometers still an obstacle, is a hindrance to communicate in a better way. Okay, even if you are speaking the same language, that is the rule. You can say when you are not listening properly even in the same language, you will definitely struggle. As we are, we have not reached the future yet. We had Webel would have been able to speak more comfortably in his native German. He could have speak in German native language comfortably, and I would have been able to hear his words in English. Okay, so you can see we'll find out the answers. The speakers are communicating in different languages. No, they were different. They were, I mean, in the same language. You can see same language. We have read that one also. So you see this one. I am struggling to follow him in English. Okay, because he was also conversing in English. That's why they were not using different languages. They were using same language. Neither of the speaker is familiar with the environment. Familiar. They were familiar because he was listening some noise. Okay, and they were also they the first speaker knows that they are sitting almost 1000 kilometer apart. Okay, and he was struggling. So where he was sitting? Kyoto. And you can see there was obstacle. Yes, there was obstacle communication. Why? Because they know the background. Okay, so the topic of the conversation is difficult. No, he didn't mention that the topic was difficult for conversation. So this is the last option. You can see aspects of the conversation are challenging. Yes, definitely. It was conversations aspects were challenging for both of the speakers. Why they were challenging? One thing was the distance, that was the 1000 kilometer. The other one was the scratchy line. The third one was the obstacles to communication even. Okay, so these were the aspects which they are
facing. These were the challenges even can you see for the both speakers. Let's move toward the next one. What assist the electronic translator? कौन सी चीज़ है जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेटर को हेल्प करती है ड्यूरिंग लेक्चर्स एट कार्लुश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी? ठीक है जी, कार्लश्रू इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे लेक्चर्स के दौरान कौन सी ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांसलेटर हैं उनकी वो मदद करती है? तो हम देखते हैं जी कौन सी चीज़ मदद करती है, ये देख लें. At Karlsruhe Institute of Technology, where he is a professor of computer science, Webel and his colleagues already give lectures in German. So you can see in this institute, he was a professor of computer and was delivering lectures in computer sciences in German language, and their students can follow in English via electronic translator. And this was an amazing that the students were following that lecture in English and the lecturer was delivering lecture in German language. Okay, the system generate text. You can see that system generate text. Okay, तो वो जिस सिस्टम के थ्रू बात करते हैं वो टेक्स्ट भी जनरेट करता है ताकि जो सुनने वाला है देखने वाला है वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सके. दैट स्टूडेंट्स कैन रीड ऑन देयर लैपटॉप्स और फोन्स. आपने देखा होगा अक्सर मूवी देखते हैं तो नीचे जो सबटाइटल चल रहा होता है वो बिल्कुल सेम वही चीज़ है. सो द प्रोसेस इज समवट सिमिलर टू सबटाइटलिंग. यस, यू कैन सी प्रोसेस बिल्कुल सबटाइटलिंग की तरह ही है. इट हेल्प्स दैट लेक्चरर्स स्पीक क्लियरली. इट हेल्प्स, अब ये देखें वहाँ पे भी वो असिस्ट की बात करता है. इट हेल्प्स दैट लेक्चरर्स स्पीक क्लियरली. एक तो वो लेक्चरर्स जो हैं वो क्लियरली बात करें. डू नॉट हैव टू कम्पीट विद बैकग्राउंड चैटर. बैकग्राउंड में कोई शोर ना हो. एंड से मच द सेम थिंग एवरी ईयर्स, ईच ईयर, और हर साल एक ही बात जो है वो बार बार करें. तो हम देखते हैं ये the repeated content lectures. Yes, the repeated content of the lectures, you can see this one in the last line of this paragraph, and say much the same thing every year. Now you can see this is the same thing, the repeated content, say much the same thing of the lectures. Okay, we'll read out the other options as well. The students reading skill, it was not assisting, it was not helping the students in reading skills. You can see we have read also that paragraphs, we never got that kind of information. The languages used, no, that was not also an option. The lectures technical ability, so it is also eliminated because we have not read this kind of information also there. When referring to the Hitchhiker's Guide to the Galaxy, okay, he was giving reference of this book, this kind of book. The writer suggests, what does the writer say? द बेबल फिश वॉज कंसिडर्ड अनडिज़ायरेबल एट द टाइम. कोई बेबल फिश है, ठीक है जी, उसको समझा जाता था अनडिज़ायरेबल एट दैट टाइम. दैट वॉज उसको अच्छा नहीं समझा जाता था. दिस बुक वॉज नॉट सीरियसली इंटेंडिंग. वी विल रीड डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द हिच हाइकर्स गाइड्स टू द गैलेक्सी. ओके, सो hitchhikers, yeah, this one you can say, this is the third one. Okay, we will read out first Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Yes, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, you can see, find this one. These are the kind words try to keep in mind when you think, okay, about finding an answer within a wink, okay, within no time, within a short period. So you must see the keywords. Clue words may help you to find out the exact answer within a short period of time. Okay, the Hitchhiker's Guide to the Galaxy, published in, okay, in 17, featured a live farm called the Babel fish, which when placed in the ear enabled a listener to understand any language in the universe. यानी ये बेबल फिश एक है फार्म, फीचर्ड अ लाइफ फॉर्म है, जिसको कहा जाता है कि ये जब आप कान में लगाते हैं, ठीक है जी, तो सुनने वाला जो है कोई ज़ुबान जो किसी और ज़ुबान में बात किया जाता है तो वो अपनी ज़ुबान में उसकी ट्रांसलेशन सुनता है, दुनिया की किसी भी ज़ुबान में हो. अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज इन द यूनिवर्स, ठीक है जी. इट केम टू रिप्रेजेंट वन ऑफ दोज डिवाइसेस दैट टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट ड्रीम. ये आई है उन डिवाइसेस में से एक है जिसकी टेक्नोलॉजी के शदाई लोग जो हैं उसका ख्वाब देख रहे थे ऑफ लॉन्ग बिफोर दे बिकम प्रैक्टिकली रियलाइजेबल. यहाँ तक कि ये प्रैक्टिकली रियलाइजेबल जो है वो बन गई है. लाइक टीवीज फ्लैट अनफ हैंगिंग ऑन द वॉल. टीवी जो है उसको वॉल पे हैंग किया जाता है. ऑब्जेक्ट्स दैट वी वंस कुड ओनली ड्रीम ऑफ हैविंग
यानी ये वो ऑब्जेक्ट हैं जिनका हम कभी ख्वाब ही देखते थे, दैट आर नाउ कॉमन प्लेस, दे आर नाउ वेरी कॉमन, नाउ दे आर एट इन आवर हाउसेज। नाउ डिवाइसेस दैट लुक लाइक प्रॉब्ली प्रोटोटाइप बेबल फिश हैव स्टार्टेड टू अपीयर। पहले जो बेबल जो फिश थी उनकी प्रोटोटाइप जो थी वो अब वैसे ही अपीयर होना शुरू हो गई हैं, हमारी लाइफ में आना शुरू हो गई हैं, राइडिंग अ वेव। तो ये हम देखते हैं जी, द बेबल फिश वॉज कंसिडर्ड अनडिजायरेबल। कहीं आप देख सकते हैं कि इसको कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये अनडिजायरेबल है, ठीक है जी, कि ये बेबल फिश जो है कहीं पे भी अनडिजायरेबल जो उसको कंसिडर किया जाता है एट द टाइम के उसको अच्छा नहीं समझा जाता, कहीं पे भी नहीं लिखा। दिस बुक वॉज नॉट सीरियसली इंटेंडेड टू प्रिडिक्ट फ्यूचर। कहाँ पे लिखा है कि दिस जी टू दिस बुक वॉज नॉट सीरियसली इंटरेस्टिंग intending to predict future. Is it serious to I mean intend or predict the future? No, never. Okay, so this also is not the answer. So what about the third one? What about the third one? You see, artificial speech translation was not a surprise development, was not a surprise development. Okay, okay, we'll check this one. Okay, some speech translation techniques are better than others. Okay, is there anywhere mentioned that some techniques are better than the other one? No, there was not comparison. Okay, the single thing is there, we'll check whether it is the option which is correct or no. Artificial speech translation was not a surprising development. Okay, we'll check it is a surprising development or not. ओके, इट केम टू रिप्रेजेंट वन ऑफ दोज डिवाइसेस। अच्छा, ये आई है वन ऑफ दोज डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करने आई है, ठीक है, दैट टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट ड्रीम्स ऑफ लॉन्ग बिफोर दे बिकेम प्रैक्टिकली रियलाइजेबल। कि ये उन डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करने आई है जिनके बारे में टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करने वाले काफ़ी देर से ख्वाब देख रहे थे कि वो हकीकत में इसको यूज़ करें। लाइक टीवीज फ्लैट इनफ टू हैंग ऑन द वॉल्स, जैसे कि टीवी है जिसको वॉल पर लटकाया जाता है। ऑब्जेक्ट्स दैट वी वंस कुड ओनली ड्रीम ऑफ हैविंग, ये ऑब्जेक्ट हैं जिनका कभी हम ख्वाब देख सकते बट दे आर नो कॉमन प्लेस, अब तो ये कॉमन प्लेस है। तो इसमें आप देखेंगे वॉज नॉट अ सरप्राइजिंग, ये कोई सरप्राइजिंग डेवलपमेंट नहीं है, ये अब कॉमन प्लेस है, ठीक है जी। काफ़ी देर से इंथ्यूजियस्ट जो हैं वो इसके बारे में सोच रहे थे, ठीक है जी। जी, तो द नेक्स्ट वन, व्हाट डज द राइटर से अबाउट शेयरिंग earpiece? Okay, sharing earpiece. Okay, what does the writer say about it? Okay, we'll check what does the writer say. You see this one, for conversation both speakers need to have devices, यानी दोनों के पास devices होनी चाहिए, called pilots. Okay, translator, earpiece. Okay, some earpieces when you stuck in your ears, okay, they translate the language which you desire to listen, so in their ears. We find that there's a barrier. Now you can say there's a barrier with sharing one of the earpiece. Okay, there's a problem. Okay, if you share your earpiece with some stranger or some other person, there's a barrier, there is some kind of obstacle or hurdle, कुछ प्रॉब्लम इशू बन जाता है विद अ स्ट्रेंजर, जब आप स्ट्रेंजर के साथ करते हैं ना, ठीक है जी। फिर दैट कैनॉट हैव बिन टोटली अनएक्सपेक्टेड, ये मुकम्मल तौर पर इस अनएक्सपेक्टेड नहीं किया जा सकता इससे। द प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व्ड इफ एयरपीस ट्रांसलेटर बिकेम सफिशिएंटली प्रेवलेंट। ये प्रॉब्लम हल हो सकती है कि अगर ट्रांसलेटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो जावे, दैट स्ट्रेंजर्स वुड बी लाइकली टू ऑलरेडी हैव देयर ओन इन देयर ईयर्स, और हर स्ट्रेंजर जो है उसके अपने कान में अपने पहले से होना चाहिए, ठीक है जी। तो हम देखते हैं इसमें, it's something people will get used to doing it. No, people will not get to used to it. It is something people will get used to doing. क्या वो used to हो जाएंगे इससे? नहीं जी, used to तो नहीं होंगे। The reluctance to do, yes, the reluctance to, the unwilling to do this is understandable. यानी ये obstacle है, ठीक है जी। जब तक एक बैरियर है, the reluctance, the unwillingness, the reluctance किसको कहते हैं जी? अनविलिंगनेस को, ठीक है, कि वो राजी नहीं होते, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे है, वी फाइंड, देख लें, वी फाइंड दैट देयर इज अ बैरियर विद शेयरिंग वन ऑफ द अदर पीस विद एयरफोन्स विद स्ट्रेंजर्स, तो वो वहाँ पे बैरियर है, ठीक है जी। तो प्रॉब्लम ये सॉल्व हो सकती है कि अगर हर बंदा जो है वो अपना ट्रांसलेटर जो है वो खुद रखे, ठीक है। तो ये है कि रिलक्टेंस टू डू दिस,
इस तरह का करना जो है ना, उससे यदि रिलक्टेंस है, उस पर राजी ना होना, ये समझ में आता है। ओके, वीएलजी, द इक्विपमेंट विल बी अननेसेसरी इन फ्यूचर। क्या कहीं पे लिखा है कि इक्विपमेंट जो है अननेसेसरी है फ्यूचर में? नो, it is something few people need to worry about it. No need to worry about it, not where mentioned. ये है the reluctance to do this is understandable. ये देख लें, ये यहाँ पे we find that there's a barrier with sharing one. तो ये है हमारे पास, ये जो रिलक्टेंस है ना यहाँ पे शो हो रही है, बैरियर है, ठीक है। तो रिलक्टेंस है, अनविलिंगनेस है ठीक है जी, हमारे पास अनविलिंगनेस है हमारे पास, और क्या है, डिसइंटरेस्ट, आप कह सकते हैं कि जो लैक ऑफ एंथुसियाज्म है, ये हो सकता है, जो लैक बैरियर्स हैं, ठीक है जी। ये बैरियर है, यहाँ पे हमारे पास है रिलक्टेंस है, तो इसको हम लैक ऑफ एंथुसियाज्म भी कहते हैं, अनविलिंगनेस भी कहते हैं, कि राजी ना होना कि टू डू दिस इज अंडरस्टैंडेबल। तो हमारे पास एक ये ऑप्शन जो है वो बच रही है, ठीक है। द रिलक्टेंस टू डू दिस इज अंडरस्टैंडेबल, कि इसको ना करना जो है ना जी, इसको राजी हो के ना करना, खुश हो के ना करना, ये समझ में आता है। तो वो वही चीज़ है कि ये फाइंड, इस दो बैरियर है, कोई ना कोई रुकावट है शेयर करना जो स्ट्रेंजर्स में है। तो हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं जी, हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के हैं, आप देख लें। थोड़े से क्वेश्चन है हमारे पास। कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट एंडिंग, ठीक है जी, करेक्ट एंडिंग। नाउ यू कैन सी दीज आर सम information is given for information. Okay, we'll have to find out their their what you call sentence with the correct ending. These are their endings. You see, we'll have to write down A to F options in front of for these statements. Okay, so let's read out. Speech translation methods are developing fast in जापान। ओके, हम देखते हैं जी जापान में जो हैं वो कर रहे हैं, तो इसकी कौन सी ऑप्शन जो है वो मैच कर रही है, यहाँ हम देखते हैं। वे विल हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्टन एशियन नेशंस। ओके, वो वाजे करता है इसकी अहमियत, एशियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे नोटिंग, और ये देखता है दैट वॉइस ट्रांसलेशन हैज़ रियली टेकन ऑफ इन कंट्रीज़, ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कंट्रीज़ में, जैसे कि जापान है, विद अ रेंज ऑफ सिस्टम, काफ़ी ज़्यादा सिस्टम भी है इसमें, निज़ाम। देयर इज़ अ स्टिल लॉन्ग वे टू गो, अभी भी काफ़ी करना कुछ बाकी है। तो हम देखते हैं जी ठीक है जी, देख रहे हैं जी। बट देर आर कंसर्न्स अबाउट इट, कंसर्न्स तो अभी इसमें कोई परेशानी वाली तो वो बात नहीं कर रहा। ए सिस्टम डू नॉट नीड टू कन्फर्म, ये भी नहीं है। बट दे आर फार फ्रॉम परफेक्ट, यस, ये आप देख लें, दे आर फार फ्रॉम परफेक्ट। कैसे जी? वो कहता है कि वो आर डेवलपिंग फास्ट इन जापान, ये तो वो लिख रहा है, ठीक है, कि ये स्पीच ट्रांसलेशन मेथड्स आर डेवलपिंग फास्ट इन जापान, जापान में काफ़ी तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और साथ वो ये मैंने जो सी ऑप्शन लिखी है वो कहता है कि बट दे आर फार फ्रॉम परफेक्ट, अभी परफेक्ट नहीं है। तो ये भी यही बात कर रहा है, क्या कहता है, कहता है दैट वॉइस ट्रांसलेशन हैज रियली टेकन ऑफ इन कंट्रीज, ये डेवलप हो चुके हैं, टेकन ऑफ कर चुके हैं कंट्रीज सच एज जापान में, विद अ रेंज ऑफ सिस्टम्स। ये देयर स्टिल लॉन्ग टू गो, ये है जी इसका स्टिल लॉन्ग टू गो, यानी अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा परफेक्शन आएगी। तो ये कहते हैं बट दे आर फार फ्रॉम परफेक्ट, लॉन्ग वे टू गो। तो ये ऑप्शन जो है हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट देखते हैं, टीवी इंटरव्यूज दैट यूज ट्रांसलेशन, टीवी इंटरव्यूज यूज ट्रांसलेशन वॉइस ओवर मेथड्स आर सक्सेसफुल, ठीक है जी। टीवी इंटरव्यूज जो है जिनमें ट्रांसलेशन वॉइस ओवर मेथड यूज किए जाते हैं ना, वो कामयाब है। तो इसके साथ ही उसमें वो भी टीवी ट्रांसलेशन भी दी हुई है, ये देखिए। अ ट्रांसलेशन सिस्टम नीड्स टू बी साइमल्टेनियस, ये इसको इंस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, इनकी यानी फौरी होनी चाहिए, कि अगर कोई बात करता है तो जो ट्रांसलेटर है वो फौरी ट्रांसलेट करके वो बात पहुंचाए। लाइक द ट्रांसलेटर्स वॉइस स्पीकिंग ओवर द फॉरेन पॉलिटिशियन बीइंग इंटरव्यूड ऑन द टीवी, बिल्कुल ऐसे ही कि ट्रांसलेटर की आवाज़ जो है, जो कि एक बैरूनी जो पॉलिटिशियंस है उसको वॉइस ओवर कर रहा है, बीइंग इंटरव्यूड ऑन द टीवी, जो इंटरव्यू पर टीवी दे रहा है, रादर देन इन सेक्शन, वो ऐसा ना हो कि सेक्शन में वो अपनी बात पहुंचाए, बल्कि साइमल्टेनियस हो, नीड्स, ये इसकी कामयाबी ये है कि वो साइमल्टेनियस हो, ना कि सेक्शन में हो। दैट ओब्लाइज स्पीकर, क्या होता है अगर सेक्शन में होगा, दैट ओब्लाइज स्पीकर, तो स्पीकर को ये पाबंद करता है टू पाज आफ्टर वेरी फ्यू रिमार्क्स, कि चंद बातों के बाद वो
रुक जाए एंड वेट फॉर द ट्रांसलेशन टू बी डिलीवर्ड, और वो इंतज़ार करे कि जब तक ट्रांसलेशन जो है वो डिलीवर नहीं हो जाती। देखते हैं जी हम यहाँ पे कौन सी है जी, बट दे आर कंसर्न्स अबाउट इट एज सिस्टम्स डू नॉट कंप्लाई नो। ठीक है जी, तो हम देखते हैं जी कि डिस्पाइट द नॉइस इशू की कोई बात नहीं है, बिकॉज ट्रांसलेशन जी, ये देख लें, बिकॉज ट्रांसलेशन इज इमीडिएट। ट्रांसलेशन जो है वो साइमल्टेनियस एट द सेम टाइम होनी चाहिए, तो वही कामयाबी है इसकी। ठीक है जी, तो हमारे पास ई ऑप्शन है, हम इसके सामने ई जो है वो लिख देंगे। नेक्स्ट है जी, फ्यूचर ट्रांसलेशन सिस्टम जो है ना शुड एड्रेस पीपल अप्रोप्रिएटली। जो फ्यूचर ट्रांसलेशन सिस्टम्स हैं उनको चाहिए कि वो लोगों को एड्रेस करें, लोगों को बेहतर बनाएं। देखते हैं जी कि लोगों को बेहतर बनाएं तो वो कैसे बेहतर बनाएं। हाँ जी, ये देखिए, सिस्टम्स नॉट ओनली नीड टू कोप विद फिजिकल चैलेंजेस। ये जो सिस्टम्स है उनको सिर्फ फिजिकल चैलेंजेस के साथ ही नहीं निपटने की ज़रूरत होती, सच एज नॉइस, जैसे कि नॉइस है, उनको सिर्फ वो नॉइस या शोर के चैलेंजेस नहीं उनको सामना करने पड़ते। दे विल ऑल्सो नीड टू सोशली अवेयर, वो सोशली अवेयर भी होनी चाहिए कि मुआशरे में क्या हो रहा है। ठीक है जी, बाय एड्रेसिंग पीपल, और पीपल लोगों की रहनुमाई करनी चाहिए इन द राइट वे। मुआशरे में क्या चीज़ है उनको एड्रेस करना चाहिए लोगों को, और राइट वे में ये सिस्टम को भी पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं जी कि फ्यूचर में शुड एड्रेस पीपल अप्रोप्रिएटली है, तो हम देखते हैं जी, हाँ जी, एंड हैव अवेयरनेस, ये देखें जी, सोशली अवेयर होना चाहिए। ठीक है, गुड मैनर्स के साथ, तो ये हमारे पास एफ जो चीज़ है एफ आ रही है। ठीक है, हैव एन अवेयरनेस ऑफ गुड मैनर्स, जब वो सोशली एड्रेस करेंगे लोगों को राइट वे में तो उसमें गुड मैनर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, आगे इसको थोड़ा सा अगर और भी पढ़ लें, सम कल्चरल ट्रेडिशन डिमांड solemn respect for academic status. For example, it is only polite to respect this. Etiquette sensitive artificial translator could relieve people of the need to know these different cultural norms. यहाँ पे भी कल्चरल नॉर्म्स की बात कर रहा है। ठीक है जी, तो ये जो है वो बेस्ट जो है वहाँ पे ऑप्शन है। यूजर्स में बी एबल टू मेंटेन देयर लोकल कस्टम्स। यूज़र जो हैं वो इस काबिल होने चाहिए कि वो लोकल जो उनके रस्म व रवाज हैं उनको बरकरार रख सकें। हम देखते हैं जी इसके बाद फिर एटिकेट सेंसिटिव जो हमारे पास हैं आर्टिफिशियल ट्रांसलेटर कुड रिलीव पीपल, वो लोगों को रिलीव कर सकते हैं ऑफ द नीड टू नो दीज डिफरेंट कल्चरल नॉर्म्स, कि वो जो सकाफती उनके असूल हैं उनको उनके बारे में जान सकें। एट द सेम टाइम दे माइट हेल्प टू प्रिजर्व लोकल कस्टम्स, और फिर उनकी मदद की जानी चाहिए कि वो अपनी लोकल कस्टम्स जो हैं उनको प्रिजर्व करें, महफूज करें। स्लोइंग द स्प्रेड ऑफ हैबिट्स, और उन हैबिट्स के फैलाव को कम करें एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल इंग्लिश, जिनका तल्लक इंटरनेशनल इंग्लिश से है। ठीक है जी, अब देख लें इंटरनेशनल है हमारे पास, तो यहाँ पे देखें ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है जी, तो हमारे पास है यहाँ पे बी ऑप्शन, ये एक ही चीज़ है, मेंटेन लोकल कस्टम्स, वो इस काबिल हूँ कि वो अपनी लोकल कस्टम्स जो हैं उनको मेंटेन कर सकें। एज सिस्टम्स डू नॉट नीड टू कंफर्म टू स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, क्योंकि सिस्टम जो है वो जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस है, उसके साथ कंप्लाई नहीं करता, उसके साथ तावन नहीं करता, तो लोगों को इस काबिल होना चाहिए कि वो अपनी लोकल कस्टम जो है उनको मेंटेन करें जी। तो फिर देख लें यहाँ पे हम देख लेते हैं, दे माइट हेल्प टू प्रिजर्व लोकल कस्टमर्स, शोइंग द स्प्रेड, स्लोइंग द स्प्रेड, ये देखिए स्लोइंग, ये कंप्लाई नहीं कर रहा, द स्प्रेड ऑफ हैबिट्स एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल इंग्लिश, इंटरनेशनल इंग्लिश की जो स्प्रेड हो रही है, ठीक है, उसकी उससे एसोसिएटेड जो हैबिट्स हैं उनको स्लो किया जा रहा है, वो कंप्लाई नहीं कर रहा, ये देखें कन्फर्म नहीं कर रहा ये, तो इसलिए हमारे पास बी ऑप्शन है। हम अब देखते हैं जी कि हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शंस हैं वो कौन सी हैं, ये है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको पता ही है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन क्या होती हैं। हम पढ़ते हैं जी, लैंग्वेज ट्रांसलेशन सिस्टम्स विल बी सीन एज वेरी यूजफुल थ्रू आउट द एकेडमिक एंड प्रोफेशनल वर्ल्ड्स। लैंग्वेज
ट्रांसलेशन सिस्टम जो हैं उनको थ्रू आउट तालीमी और जो प्रोफेशनल पेशावर दुनिया है वहाँ पे उनको मुफीद जो है वो देखा जाएगा। ठीक है जी, विल बी सीन एज वेरी यूजफुल, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देखा जाएगा तालीमी और जो प्रोफेशनल वर्ल्ड है दोनों में ही। हम देखते हैं जी, ये देखते हैं यहाँ पे, ये प्रोफेसर्स एंड अदर प्रोफेशनल्स विल नॉट आउटसोर्स। प्रोफेसर और प्रोफेशनल, ये देखें एकेडमिक हैं और प्रोफेशनल जो हैं, विल नॉट आउटसोर्स, वो तो कहते हैं कि आउटसोर्स करेंगे ही नहीं, असाइन करेंगे ही नहीं लैंग्वेज अवेयरनेस टू द सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर को करेंगे ही नहीं। ठीक है जी, दो इफ द टेक्नोलॉजी मैच्योर्स इनटू सीमलेस, अगर टेक्नोलॉजी जो है वो फ्लॉलेस बन गई, यूबिक्यूटस, हर जगह पे पहुंच गई, तो स्पीच ट्रांसलेशन इट विल एक्चुअली ऐड वैल्यू टू द लैंग्वेज स्किल्स, इट विल एक्चुअली ऐड वैल्यू टू द लैंग्वेज स्किल्स। तो लैंग्वेज स्किल्स की जो वैल्यू होगी उसमें इजाफा होगा। ठीक है, तो प्रोफेसर्स क्या कहते हैं, वो तो कह रहे हैं कि प्रोफेसर और अदर प्रोफेशनल विल नॉट आउटसोर्स, वो नहीं इसको देंगे लैंग्वेज अवेयरनेस टू द सॉफ्टवेयर को। ठीक है जी, तो यहाँ पे वो क्या कहता है, कहता है लैंग्वेज ट्रांसलेशन सिस्टम विल बी सीन एज यूजफुल थ्रू आउट द एकेडमिक, वो थ्रू आउट द एकेडमिक एंड प्रोफेशनल वर्ल्ड में होगी, लेकिन वो तो ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन सिस्टम है इसको तो लैंग्वेज दे ही नहीं रहे। ये देख लें, प्रोफेसर अदर लैंग्वेज विल नॉट असाइन, वो असाइन नहीं करेंगे लैंग्वेज अवेयरनेस टू सॉफ्टवेयर को नहीं देंगे, यानी ये सॉफ्टवेयर जो है ये है लैंग्वेज ट्रांसलेशन सिस्टम विल बी सीन। अगर ये एकेडमिक और प्रोफेशनल जो हैं, ये प्रोफेशनल जो है लैंग्वेज सिस्टम्स को देंगे तो फिर ही यूजफुल होगी। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है कि प्रोफेसर्स एंड प्रोफेशनल्स विल नॉट आउटसोर्स, वो तो इसको असाइन नहीं करेंगे लैंग्वेज अवेयरनेस को, किसको, लैंग्वेज अवेयरनेस किसको, सॉफ्टवेयर को, तो वो नहीं देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या कहता है कि ये यूजफुल होगी, जब वो देंगे नहीं तो यूजफुल कैसे होगी, तो इसका मतलब है कि यस नो नॉट गिवन है तो हमारे पास नो होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास द ओवरऑल वैल्यू ऑफ ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन टू फैमिली लाइफ इज येट टू बी शोन। ठीक है जी, तो हम देखते हैं जी कि येट टू बी शोन द ओवरऑल वैल्यू, जो ओवरऑल मजमूई वैल्यू है ना ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन की टू फैमिली लाइफ के लिए येट टू बी शोन, वो अभी दिखाना बाकी है। तो हम देखते हैं जी यहाँ पे it will actually add value to the language skills, whether it will help people conduct their family lives। जी, ये क्या करेगी, लोगों की मदद करेगी ताकि वो अपनी जिंदगियां जो हैं उनको चला सकें और रिलेशनशिप को चला सकें। इज ओपन टू क्वेश्चन, ये अभी तक ओपन टू क्वेश्चन है, येट टू बी शोन है, ये देखें येट टू बी शोन है, बिल्कुल मैच कर रहा है। द ओवरऑल वैल्यू ऑफ ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन टू फैमिली लाइफ इज येट टू बी शोन, अभी इसको दिखाना बाकी होगा। ओवरऑल वैल्यू ऑफ ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन, ये भी देख लें, इट विल हैव पीपल कंडक्ट देयर, यही जो सिस्टम है तो वो क्या करेगा, इट विल हेल्प पीपल, लोगों की मदद कंडक्ट देयर लाइफ, अपनी जो खानदानी जिंदगियां हैं उनको गुजारेंगे या रिलेशनशिप को। और ये क्या है, इज ओपन टू क्वेश्चन, ये अभी येट टू बी शोन है। ठीक है जी, द ओवरऑल वैल्यू ऑफ ऑटोमेटेड लाइफ टू बी येट टू बी शोन, एग्जैक्टली सेम इंफॉर्मेशन। ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन कुड मेक लाइफ मोर डिफिकल्ट फॉर इमिग्रेंट फैमिलीज, ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन जो है वो इमिग्रेंट फैमिलीज के लिए उनकी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बना सकती है। देखते हैं जी, मज़ीद मुश्किल बना सकती है। दो वन नोटवर्दी पॉसिबिलिटी इज़ दैट, एक नुमाया इम्कान ये है कि इट कुड ओवरकम द लैंग्वेज बैरियर्स, कि ये जो ज़ुबान की रुकावटें हैं, बैरियर्स हैं, उन पर काबू पा लेगा। दैट ऑफन राइज बिटवीन तो ये क्या कहता है कि राइज बिटवीन जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कुछ बैरियर्स पैदा होते हैं, लैंग्वेज बैरियर्स, उन पर ये काबू पा लेगा। तो ये एक नोटवर्दी इम्कान है कि ये सिस्टम जो है वो जो लैंग्वेज बैरियर है, जो नस्ल दर नस्ल पैदा होता है, उस पर काबू पा लेगा। तो ये क्या कहता है कि ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन कुड मेक लाइफ मोर डिफिकल्ट। भाई मोर डिफिकल्ट तो नहीं बनाएगा, बल्कि वो तो क्या कर रहा है, वो तो ओवरकम कर रहा है जो लैंग्वेज बैरियर है, तो इसका मतलब है नो है।
ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन कुड मेक लाइफ मोर डिफिकल्ट फॉर द इमिग्रेंट फैमिलीज। ऐसा तो नहीं है कि इमिग्रेंट फैमिलीज की लाइफ जो है उसको मजीद वो मुश्किल बना देगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि वो कहता है कि नोटवर्दी पॉसिबिलिटी ये है कि ये ओवरकम करेगा, गालब आ जाएगा जो लैंग्वेज बैरियर है उन पर, दैट ऑफन अराइज इन द जनरेशन आफ्टर जनरेशन लिविंग चिल्ड्रन एंड देयर ग्रैंड पेरेंट्स विदाउट अ शेयर्ड लैंग्वेज। जी ठीक है जी। तो हमारे पास जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो आ रही है चीज़ वो ये है कि कुड ओवरकम द लैंग्वेज बैरियर, ये तो लैंग्वेज बैरियर पर काबू पा रहा है, ठीक है, ये उनकी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल तो नहीं बना रहा, इसलिए नो आ रहा है। विजुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेशन आर बीइंग कंसिडर्ड बाय द साइंटिस्ट जो हैं वो विजुअल एस्पेक्ट्स जो हैं लैंग्वेज ट्रांसलेशन के उनके बारे में गौर कर रहे हैं। देखते हैं जी विजुअल एस्पेक्ट्स हैं कहीं पे whatever uses is to put through, it will never be as good as the real thing, even if voice morphing technology simulates the speaker voice, their lips movement won't match and they will look they are in dubbed voice. The contrast will underline the value of shared language. हम देख सकते हैं कहीं पे भी कोई विजुअल एस्पेक्ट्स जो है उनकी कहीं पे भी कोई बात नहीं हो रही, तो ये नॉट गिवन है। International scientists have found English easier to translate into other language than Latin। ठीक है जी, इंग्लिश इंटरनेशनल साइंसदान जो है वो इंग्लिश को आसान समझते हैं ट्रांसलेट करना दूसरी ज़बानों की निस्बत, इनटू अदर लैंग्वेजेस दूसरी ज़बानों में, दैन लैटिन की निस्बत जो साइंसदान हैं वो समझते हैं कि इंग्लिश को दूसरी ज़बानों में ट्रांसलेट करना आसान है। देखते हैं जी। Sharing a language can promote a sense of belonging and community, as with the international scientists who use English as a lingua franca। वो साइंसदान ये देखें जो इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पे यूज़ करते हैं, where their predecessor used लैटिन, जहाँ पे उनके अबाउजदाद जो हैं वो लैटिन यूज़ करते हैं। तो द प्रैक्टिकल नीड फॉर अ कॉमन लैंग्वेज विल डिमिनिश। आप देख रहे हैं कि कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि इंग्लिश जो है वो ईजियर है ट्रांसलेट करना दूसरी ज़बानों में इसकी निस्बत, ये इसका जिक्र ज़रूर किया है उसने लैटिन का, इंग्लिश लैंग्वेज का, लेकिन ये नहीं लिखा कि इंग्लिश जो है वो ईजियर है ट्रांसलेट करना दूसरी ज़बानों में लातीनी की निस्बत, तो इसका मतलब है कि ये भी एनजी है। नेक्स्ट हमारे पास है 40th वन, एज फॉर एज लैंग्वेज इज कंसर्न, जहाँ तक ज़बान का तल्लक है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पीपल्स सोशल एंड प्रैक्टिकल नीड। तो जहाँ तक ज़बान का तल्लक है तो लोगों के मुआशरती और जो अमली ज़रूरियात हैं उनमें फ़र्क है। देखते हैं जी कि मुआशी और जो अमली ज़रूरियात हैं उसमें कोई फ़र्क है। दो द प्रैक्टिकल नीड, ये देखें, प्रैक्टिकल नीड फॉर अ कॉमन लैंग्वेज विल डिमिनिश। अगरचे जो प्रैक्टिकल अमली ज़रूरत है ना किसी आम लैंग्वेज की, विल डिमिनिश, वो तो ख़त्म हो जाएगी। द सोशल वैल्यू ऑफ शेयरिंग वन विल परसिस्ट। बिल्कुल ये देखें, अब जो सोशल वैल्यू है वो रहेगी और जो प्रैक्टिकल नीड है वो ख़त्म हो जाएगी कॉमन लैंग्वेज की। तो इसमें क्या है, डिफरेंस है ना जी, डिफरेंस है बिटवीन पीपल्स सोशल एंड प्रैक्टिकल नीड्स। प्रैक्टिकल नीड्स जो हैं वो ये देखें, सोशल और प्रैक्टिकल नीड्स जो है लैंग्वेज की उनमें फ़र्क है। तो देख लें जी, प्रैक्टिकल नीड फॉर अ कॉमन लैंग्वेज विल डिमिनिश, प्रैक्टिकल नीड के लिए लैंग्वेज जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और सोशल वैल्यू जो है इसकी ज़ुबान की वो क्या करेगी, वो परसिस्ट करेगी, यानी सोशली परसिस्ट करेगी और प्रैक्टिकली जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है, आप देख लें। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन पीपल सोशल, अगर सोशल रहेगी तो वो परसिस्ट करेगी, कायम रहेगी, और प्रैक्टिकल नीड होगी तो वो डिमिनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऑप्शन जो है वो एग्जैक्ट मैच कर रही है। तो ये हमारे पास था बुक 19 का लास्ट पैसेज था हमारे पास, ये इज़ द ईरा ऑफ आर्टिफिशियल ट्रांसलेशन अपॉन अस। तो ये था हमारे पास। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।